Hello everyone, good morning. So here we are again in a triangle topic. Such an interesting and fantastic concept we are dealing with, that is similarity. In this concept of similarity, yesterday we discussed few tests to make triangles similar. One was SSS. In case if you have all three sides in proportion, remember SSS, it means sides are not equal, they are proportional. That means the ratios are equal, we consider those triangle to be similar. Second is SAS test, which is two sides in proportion and one included angle is equal, we call triangle similar. And last is AA test. As AA test is very important, we discussed so many questions of this category, and one last question was left to be discussed, that is this one, which is right now you can see on the board. So let us understand the similarity about this triangle. It is also known as, the same concept is also known as similarity in right angle triangle. Right angled triangle. So this is also known as, well known for this similarity in the right angle triangle. Basically you're going to use this for so many different questions after this. Okay, not only in this topic, even in the coming topic. So this is something which is really very necessary that everyone should understand. Okay, so not only to understand how to make the triangle similar, but even to understand the correspondence, I am going to tell you the concept clearly. So we have three triangles here. I'll just name those three triangles. One is PQR, which is a larger one, and two smaller triangle, one is triangle PQS and triangle QRS. So these are the three triangles we have in this particular figure, in particular diagram, and basically these three triangles are similar to each other. Let me tell you, they are similar to each other. Fine. So how are they similar? What is the correspondence and what is the test? Test, of course, AA. But how are they similar? With what correspondence? Everything we'll discuss right now. First of all, we'll take a triangle. I call this as a mother triangle, and these are the two children. Okay. So I'll take mother triangle, that is triangle PQR, and the other triangle, any smaller one, the smallest one I'll take PSQ or PQS. तो दिस इज नॉट अ करस्पॉन्डेंस, तो ये करस्पॉन्डेंस नहीं है, बिकॉज आई एम जस्ट चूजिंग दोज टू ट्राइंगल्स हियर. नाउ आई विल जस्ट मेंशन दैट हाउ द एंगल्स आर इक्वल. नाउ here in this case angle S, that means in triangle PQR angle Q is equal, which is 90 degree. Angle PQR, angle I'm talking about, is equals to angle PSQ. Okay, why it is so? Because it is 90 degree. Okay, both are 90. Now this is the one thing that what I got it equal in these two triangles. One more thing I need, which one is that? Can you predict? I think I can predict that it is actually angle P. Now why angle P? P is common in both the triangles. Okay, if you understand the common concept, then only you will understand this one, common angle. Okay, you can check in triangle PSQ, angle P is same as angle PQR, right? So angle QPR is equal to angle SPQ or QPS, common angle, right? Check kar lo. I hope you understand. So we have two angles equal, two pair of angles equal, so accordingly triangles are similar. So correspondence I need to mention properly. First triangle I can write anyhow, triangle PQR is similar to, okay, is similar to triangle. Now a P, you can check here, P is equals to P, so wherever there is a P I'll write P. Angle Q is equals to angle S, you can check here, तो angle P की Q की जगह पे S होना चाहिए. Now what is left here? P हो गया, S हो गया, तो what is left is nothing but Q is left, तो PSQ. So PQR check कर लो, PQR is similar to PSQ. It is like that. Okay, is this clear? Similarly, now I will take triangle PQR, that is mother triangle, and the other child is RQS, and triangle RQS. Again I tell you, okay, this is not a correspondence. Okay, we are going to discuss the correspondence. Okay, check करते हैं. In angle PQR again the same thing, angle Q, that means PQR is equals to angle QSR, right? Angle QSR, which is of course equals to 90 degree, and there is a one angle common. Okay, one angle common, that is angle R. You can check in PQR also you will find R, and in SQR also you will find R. Now this is very important to know.
So angle QRP is equals to angle QRS, reason common angle. So it's very clear that angle Q is equals to angle S and angle R is equals to angle R. So now triangle PQR is similar to triangle. Now let us know the correspondence. R is equals to R. You can check that. So R की जगह पे you can write R. Okay. Angle Q is equals to angle S. Angle Q is equals to angle S. So angle Q की जगह पे you can write S. So in this particular one, S is done, R is done. What is left? It is nothing but Q is left. So here I'll write Q. That's it. So PQR, the same correspondence is equal to QRS. Right? QSR, sorry. QRS nahi, QSR. Clear. I'm just hoping that you understood the concept. Okay? Clear. So this is by AA test. Fine. So that's it. It's a very very simple concept. Similar thing. बार बार वही चीज़ कर रहे हैं हम लोग. बस that what you have to understand with the correspondence. Nothing else. तो अभी जो कुछ किया हमने उसी का थोड़ा सा एप्लीकेशन अभी यहाँ से करने जा रहे हैं हम लोग. थोड़ा सा फास्ट करेंगे. विल नॉट टेक और विल नॉट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम. थोड़ा सा फास्ट करेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी. लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन ऑफ सिमिलैरिटी. लेट अस सी व्हाट इज इट. Let us understand. Let's understand. A vertical stick of 12 meter long. Okay, a vertical stick है ये, which is 12 meter long. Cast 8 meter shadow. Okay, तो 8 meter shadow उसकी है. Shadow of course ground पे होगी ना. Hope you understand. Then at the same time, उसी टाइम पे एक टॉवर है जो 40 मीटर हाई है. देख लो इसका जो हाइट है वो क्या है, 40 मीटर है. एंड 40 नहीं जो गलती हो गई भाई. ओके. एट द सेम टाइम टॉवर कास्ट शैडो. ओके, तो ये जो ग्राउंड पे शैडो है वो शैडो कितनी है एक टॉवर की है, वो है 40 मीटर. ओके, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस. ये हाइट फाइंड करने के लिए पूछा है. कुछ नहीं, वो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है. आई जस्ट जॉइन दिस टू मेक अ ट्राइंगल. तो आई हैव ABC as a triangle for stick and PQR as a triangle for your tower. Vertical है तो इसलिए ये 90 होगा. राइट, दैट्स वन थिंग. एंड सेकेंड थिंग इज ये जो एंगल है दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन. आई रिपीट अगेन, this angle is called as the angle of elevation of sun. That means from this point at what angle the sun is, that's what we call as angle of elevation of sun. So as the time is same, the sun will remain at the same angle. Okay, basically that I want to tell you. If the time is same, that means at the same time if you are finding the shadow, the sun will remain at the same position, same angle, at the same elevation, right? So that's the reason this angle is equal to this angle, right? So do you think ये जो triangle है वो similar है? Think about it, isn't it? A test से ये देखो ये angle 90 है and ये angle equal है, तो isn't it these two triangles are similar? So that's it. Once the triangles are similar, the things are going to become very simple. Let us check it. So in triangle, I'll show you in triangle ABC and triangle PQR. In the beginning you may find things bit confusing because आपको presentation नहीं पता, कुछ और चीज़ें नहीं पता, so you will find things difficult. But as soon as few questions you solve, you will find it is same thing again and again. So things will be easy for you. Don't worry. So angle B is equals to angle Q and that is equals to 90 degree. And angle C is equals to angle R. Reason angle of elevation of sun. Okay, so what you can do is you can remember this for a while. एक ही ऐसा वाला क्वेश्चन है, सो डोंट वरी, यू कैन रिमेंबर इट. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, वो कौन सा एंगल है वो भी देख लो, ऊपर वाला नहीं है ये एंगल. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बॉटम एंगल. सो रिमेंबर दैट एज वेल, दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. सो आई रिमाइंड यू इन द टाइम ऑफ रिविजन. डोंट वरी. तो इज इट डन? सो वी हैव ट्रायंगल ABC similar to triangle PQR. Why so? A test. Okay, you remember, that's the reason I told you this test we are using so many times. Okay, so that's it. Clear? So PQR is similar to ABC, we got it. If triangles are similar, what do you know about its sides? Now this is
रिक्वायर्ड हियर, क्योंकि मुझे तो साइड फाइंड करनी है। तो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो मेरे पास साइड क्या होनी चाहिए, साइड होनी चाहिए प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। चेक कर लो, ए बी अपॉन पी क्यू is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. So never write this looking at triangles. Always write this looking at the correspondence, which is very very important. Otherwise 100% you're going to make mistake. So never look at the triangle and write the side correspondence. Never ever make this mistake. So look at the side, this one, and then go for correspondence. Anyway, I'll continue it. We have learned this in the previous day. Okay, so I don't have to tell you this. AB, I'll just put the values which are given. AB is 12, PQ I don't know, BC is 8, and QR is 40. So here three values are given and one I have to find out. I can easily find out. I don't require this. So that doesn't mean that you should not write that. Instead, you can write it. That's not the problem. Okay, just write the reason. CSST, corresponding side of similar triangle. Remember that now. CSST. So PQ I can interchange, and then I can get this as 8 1s are 8 5s are 40, 5 12s are 12 5s are 60, and PQ comes here. So 60 is equals to PQ. So what is the height of the tower? Height of the tower is 60 meter. Is height of the tower. Anyway, clear? Getting it? So very simple. 2 मार्क का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है बेसिकली, ये टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अभी क्वेश्चंस आर गोइंग टू बिकम डिफिकल्ट। अलग अलग टेस्ट का यूज़ करके हम लोग इसको प्रूव करेंगे सिमिलर, एंड देन वी विल बी प्रूविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। नाउ अंडरस्टैंड इट वन थिंग, that this kind of a statement that what we have seen here, it was there in BPT as well. Now that there can be the confusion that here I have to use BPT or similarity, because the similar questions we have. So there here you have to understand that there is nothing parallel given. Okay, so that's the reason here the question is of similarity. Okay, so this kind of a rough idea you can keep in mind, that in case lines are not parallel, there it is a question of similarity. ठीक है, rough idea. चलो आगे बढ़ते हैं। तो forget about what is asked here, never look at that, otherwise you will never get the answer. Okay, but हाँ, one thing is there कि what is asked is about side is asked. Okay, so I have to mention about the side when the triangles are similar. So first of all basically I have to prove triangle similar and write the exact correspondence. तो मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक्चुअली तीन है, लेकिन दो सिमिलर हो सकते हैं, दो ही सिमिलर हो सकते हैं. विच आर दोज ट्राइंगल? वन इज लार्जर वन, ए बी सी, एंड सेकेंड इज यहाँ पे डी है, ए डी सी. आई डोंट से दैट दिस इज द करेक्ट करस्पॉन्डेंस, ये करेक्ट करस्पॉन्डेंस नहीं है, ये बस मैंने क्या किया हुआ है, लिखा हुआ है कि ये दो ट्राइंगल्स में मैं सिमिलैरिटी आई एम गोइंग टू मेक इट, ओके, गोइंग टू मेक देम सिमिलर. तो चलो आगे बढ़ते हैं. कौन से एंगल इक्वल है देख लो, इन केस पॉसिबल है तो डायरेक्टली तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी है, दैट मीन्स एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी. तो मेक श्योर दैट एंगल ए एंड एंगल डी आर इक्वल गिवन. बराबर है ना? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. आइडिया समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं. और एक एंगल इक्वल होना चाहिए, तो कौन सा एंगल इक्वल है आपको अगर समझ में आता हो तो बहुत अच्छी बात होगी. देखो, चेक करो, समझ में आ रहा है? पॉज एंड देन फाइंड इट आउट, क्योंकि ये फाइंड करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आई कैन हेल्प यू राइट नाउ इन केस इफ यू वांट. हियर इज द एंगल इक्वल. क्यों इक्वल है ये तो बताओ. देख लो, इन दिस टू ट्राइंगल्स ये एंगल इक्वल है. क्यों इक्वल है? सिंपल, यस, इट्स अ कॉमन एंगल, राइट, इट्स अ कॉमन एंगल. तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी. एंगल ए सी डी, रीजन क्या होगा? कॉमन एंगल, right? And now it is important, this is very important to make triangles similar and with the proper correspondence. तो कैसे होंगे ट्राइंगल सिमिलर? पहले एक ट्राइंगल का नाम लिखो, ए बी सी, लिख लिया? ओके 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 ओके, इक्वल नहीं, सिमिलर ट्राइंगल. अभी जो भी एंगल इक्वल हमने किए, ए इक्वल्स टू डी, तो ए की जगह पे डी लिखो, बराबर है, राइट? देन एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, तो इसके सी की जगह पे इसका सी लिखो. अभी इन ए डी सी में क्या बचा है देख लो, डी हो गया, सी हो गया, क्या बचा है? ए बचा है, तो ए लिख लो यहाँ पे. दैट्स इट. सो दिस इज नथिंग बट ए टेस्ट ट्रायंगल्स आर सिमिलर.
Now this is quite required, quite important. Okay, but triangle similar is not my task. My task was to prove something like this. That means what I have to do, I have to say something about its sides. Sides के बारे में बोलना है. Sides के बारे में बोलना तो बहुत आसान है. तो AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू BC, ये रहा BC अपॉन AC इज इक्वल्स टू AC अपॉन DC, AC अपॉन DC. तो मुझे किसका स्क्वायर चाहिए? CA स्क्वायर चाहिए. CA स्क्वायर कहाँ पे? यहाँ पे. ये रहा CA, ये रहा CA. तो ये दो रेशियोज को इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई आई मस्ट गेट माई आंसर. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू DC, BC इंटू DC, राइट, बराबर है. वही है ना, BC इंटू CD, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC इंटू CD. डन, दैट्स इट. ये आ गया मेरा सॉल्यूशन, मतलब प्रूफ. दिस इज रीजन CSST, corresponding side of similar triangle. Now what do you understand in this? What do you understand? Correspondence is important. Making triangles similar by whatever test is, correspondence is extremely important in all this category of questions. Clear? आगे बढ़ते हैं. तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ अभी, आपको खुद से करना पड़ेगा. ठीक है, कंप्लीट इट ऑल बाय योर सेल्फ. टेक द प्रॉपर करस्पॉन्डेंस. अभी तो बहुत सिंपल है, आगे और करस्पॉन्डेंस डिफिकल्ट होता जाएगा, राइट. तो अभी बहुत सिंपल है, तो चलो वर्क करते हैं. सिंपल है, जल्दी वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे डायरेक्टली प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर है. वो तो दिया हुआ है कि कैसे करस्पॉन्डेंस में वो सिमिलर होना चाहिए, तो अच्छी बात है. तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो डायरेक्टली सिमिलर हो जाएंगे. लेकिन सब टू प्रूव दैट आई एम नॉट गिवन एनीथिंग अबाउट एंगल्स, आई एम गिवन अबाउट साइड्स. दैट मीन्स आई हैव टू यूज आइदर SSS टेस्ट, राइट, और SAS टेस्ट. दोनों में से एक यूज़ करना है. तो चेक करते हैं. दो साइड्स के बारे में ही दिया हुआ है मुझे, यू कैन चेक दैट. थर्ड साइड मतलब PQ एंड BC के बारे में तो कुछ नहीं दिया. इसका मतलब SAS टेस्ट ही होना चाहिए. तो एंगल एक तो कॉमन है ही, वेरी क्लियरली एंगल एक कॉमन है. तो कैन आई गो फॉर टू साइड्स इन प्रोपोर्शन, ये चेक करते हैं. नाउ इन दिस ट्रायंगल टू साइड्स इन प्रोपोर्शन का मतलब क्या होगा? आई हैव टू फाइंड आउट AP अपॉन AB बेसिकली. AP इज द साइड ऑफ स्मॉल ट्रायंगल and AB is the side of large triangle. Okay, that ratio I need to get. तो AP कितना है? 3.5. AB कितना है? अभी आप बोलोगे 7 नहीं है. 7 प्लस 3.5 तो कितना हो जाएगा? 10.5. राइट, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. तो दोनों को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 35 अपॉन 105. 7 से डिविजिबल है, 7 5 जा 35, 7 1 जा, देन 7 5 जा 35 and 5 1 जा 5 3 जा 1/3. Next one, AQ I'll take AQ upon AC I am going to take. Okay, what ratio I want that I have taken. तो AQ कितना है? 3. AC कितना है? 3 plus 6 9. तो आंसर क्या हो गया? 1/3. So therefore do we have AP upon AB is equals to AQ upon AC? Do we have this? Yes, both are equal to 1/3. बट दिस विल गिव अस टू साइड्स इन प्रोपोर्शन. मतलब S दे रहा है, बीच में A भी चाहिए, तो वो कौन सा एंगल होगा? एंड एंगल PAQ इज इक्वल टू एंगल BAQ. क्यों है? कॉमन एंगल, राइट. सो देयरफॉर वी हैव ट्रायंगल APQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC. यहाँ पे तो देखने की जरूरत ही नहीं मुझे करस्पॉन्डेंस, क्योंकि ऑलरेडी करस्पॉन्डेंस दे के रखा है. डायरेक्टली आई कैन राइट बाय व्हाट टेस्ट इट इज सिमिलर? SAS टेस्ट. दैट्स इट. कोई डिफिकल्टी? इंटरेस्टिंग है, इजंट इट? एंड सिंपल भी है, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. चलो आगे बढ़ते हैं. सेम कैटेगरी क्वेश्चन है, सेम कैटेगरी, लेकिन प्रूव करने के लिए कुछ और बोला है. ठीक है, इट इज़ अबाउट साइड्स आई हैव टू से. तो साइड्स अगर मुझे बताना है तो आई हैव टू स्टार्ट विद द सिमिलैरिटी. बट आप बोलोगे कि यहाँ पे तो BPT भी हो सकता है ना, कि AP अपॉन BP इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, राइट. लेकिन वन थिंग आपको समझ में आ रहा है कि PQ इज़ नॉट पैरेलल, और जो BPT जो है वो PQ एंड BC के बारे में कभी कुछ नहीं बोलता. यू मस्ट नो दिस दैट वेन एवर BPT यू आर यूजिंग, यू ऑलवेज यूज दीज साइड्स एंड नेवर PQ एंड BC, right? So in this manner, try to understand, it's very clear that it is not about BPT. When it is asked about BC and PQ, it is never about BPT. It is always and always similarity. Anyway, let us continue. Similarity same way, पहले triangle को similar करना है, उसके बाद ये हमें prove करना है about the side. तो चेक करते हैं सिमिलैरिटी कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग इस ट्रायंगल के लिए. तो वही चीज़ करेंगे इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लेंगे अभी? ABC
एंड ट्रायंगल ए पी क्यू। ओके, थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको यहाँ पे बोलता हूँ। इन सच क्वेश्चन, in case if you take smaller triangle first and larger triangle later would be better. Always in many questions this will be true, except very few questions this will be true for many triangles, many questions, that if you take a smaller triangle would be better, smaller triangle first. ठीक है, तो let's continue. AP upon AB I would like to check. AP is 3, AB is 9, 1 by 3. Then I would like to check AQ upon AC, 5, 15, 1 by 3. अभी आप बोलोगे ये तो 10 होना चाहिए, नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. AC लेना है, AB लेना है, complete side of the triangle. Don't take PB and QC like BPT. Never ever try to do that. Okay, so now this gives me AP upon AB, is equals to AQ upon AC. Okay, now one more angle, that is angle PAQ is equals to angle BAC. रीजन क्या होगा यहाँ पे? कॉमन एंगल. Correct? Getting it? So therefore we have triangle APQ. Now यहाँ पे करस्पॉन्डेंस देना बहुत ज़रूरी है. ए सिमिलर ट्रायंगल ABC. करस्पॉन्डेंस ए की जगह पे ए आ गया. AP is proportional to AB, तो AP is proportional to AB, AQ is proportional to AC, AQ is proportional to AC. So it means the correspondence is correct. Remember that. So this checking is required every time. Remember this. Okay. Now आगे बढ़ते हैं. If the triangles are similar, because that is not something what I have to prove. If the triangles are similar, then sides are in proportion. So I can write AP, looking at this correspondence, AP upon AB is equals to, I need about BC and PQ. So it is equals to PQ upon BC. Am I correct? Now, of course, it also equals to AQ upon AC. But right now it's not required, so I'm not writing. Okay, so if you want, you can write. There's no problem. CSST, never forget to do, right? Never forget to write it. Anyway, AP upon AB. AP upon AB. Can I substitute here? 1 by 3 is equals to PQ upon BC. So what do I get? Yes, surprisingly, we got answer easily. BC is equals to 3 times PQ, and answer done. Right? Is this clear? Fantastic. Can we try this now? Okay, so I am expecting you to complete this DIY. Okay, today let me tell you, I'm expecting all the answers you should send me. All these answers you must send me. Yesterday I did not ask you because it was a very small part, so I thought, okay, let us not ask for solution. So from today I am going to ask. Okay, so today I want you all to answer this question to me. Okay, these questions to me. All these I should get it ऑन माई मोबाइल टुडे इटसेल्फ. ओके, आगे बढ़ते हैं. 9th क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले आज हम लोग ये पार्ट जो है सिमिलैरिटी का ये कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग. वाई एम टेकिंग इट टुगेदर? बिकॉज बिलीव मी, अगर आप लोग एक साथ करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा. ओके, अगर फ्रैगमेंट्स में करोगे, सेगमेंट्स में करोगे, यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली. तो एक साथ करो, क्विकली समझ में आ जाएगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू द नेक्स्ट वन. ये बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ईजी है. OCD इज सिमिलर टू OBA. अभी इसका मतलब क्या है? एंगल O इज इक्वल टू एंगल O. देख लो, एक है तो सही, वर्टिकल अपोजिट एंगल. एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. देख लो, एंगल C इज इक्वल टू एंगल B. ये इंपॉर्टेंट है. एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल A. एंगल D जो है ये वाला एंगल जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ इज इक्वल टू A. ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको पैरेलल मत कंसिडर करो, ये और ये पैरेलल नहीं है, ऐसे पैरेलल नहीं है. नेवर इट इज सेड कि इट इज़ पैरेलल. नॉर्मली हम लोग उसको कंसिडर करते थे कि इट इज़ पैरेलल, सो इट इज़ नॉट. फाइन. बट हाउ द एंगल्स आर इक्वल, यू अंडरस्टूड. लुकिंग एट द करस्पॉन्डेंस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड हाउ द एंगल्स आर इक्वल, एंड आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हियर इन द डायग्राम. सो नाउ लेट अस प्रेडिक्ट द आंसर्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाई क्या होगा? वाई, कैन यू प्रेडिक्ट द आंसर? वाई इज इक्वल टू डी. डी मतलब 70 डिग्री. वेरी क्लियर.
उसके बाद हमें एक्स फाइंड करना है, या फिर ये 125 एंड एक्स के बीच में रिलेशन तो आपको पता ही है, सप्लीमेंट्री होते हैं लीनियर पे, तो एक्स विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा देख लो 65, यस 65 डिग्री, 65 डिग्री कौन सा हो गया एक्स, एक्स हो गया 65, ये मिल गया मुझे 65, तो 65 70 आप सी फाइंड कर सकते हो, तो जेड भी मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू जेड. Okay, angles of triangle, you remember that DOC will have a angles of a triangle, those are angles of triangle. So what do I get here? Try to understand. What do I get here is nothing but 70 plus 65 plus angle C is equal to 180, and accordingly you can find angle C, or else directly you can say angle C is equals to 180 minus 70 plus 65. So this is the way how you can directly give the answer, right? क्लियर. सो एंगल सी अगर जितना भी मिल गया वही होगा आपका जेड, क्योंकि वो जेड एंड सी क्या है, इक्वल है, राइट. एंड वाई आर दे इक्वल? ड्यू टू सी ए एस टी. व्हाट इज सी ए एस टी? करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. एंड दैट्स इट. सो वेरी सिंपल. ओके, तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बिकॉज आई डिड नॉट हैड टू प्रूव द ट्रायंगल सिमिलर, डायरेक्टली ट्रायंगल्स वर गिवन सिमिलर, तो आपको बस यूज़ करना था, इसलिए मैंने डायरेक्टली डिस्कस किया. आई डिड नॉट help in solving the question, presenting the question. But in this question I'll be surely helping you how to present the answer. First of all, do you remember this question? We have solved this in the BPT. You remember that? BPT में solve किया है, कौन सा BPT में solve किया है? You remember that? उसमें एक कंस्ट्रक्शन किया था हमने, I hope you remember that. ऐसे कुछ तो कंस्ट्रक्शन किया था, इसको ज्वाइन किया था, you remember? एंड हमने 2 ट्रायंगल्स में BPT यूज़ किया था. बट बिलीव मी, आप अगर ये समझ लोगे क्वेश्चन इन सिमिलैरिटी, यू विल नेवर यूज़ द प्रीवियस मेथड. क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे नहीं थोड़ी आएगा कि यूज़ बीपीटी टू प्रूव दिस, आपको बस यही आएगा ना कि प्रूव दैट. तो आपको मैं बोलता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो जाएगा टू प्रूव दिस. तो इसके बाद आप इस क्वेश्चन के लिए बीपीटी कभी भी यूज़ नहीं करेंगे. ओके, तो चेक करते हैं कैसे सिमिलैरिटी से ये बहुत सिंपल हो जाता है. सबसे पहली बात, सिमिलैरिटी करना है मतलब 2 ट्रायंगल ऐसे होने चाहिए विच आर सिमिलर टू ईच अदर. तो डू वी हैव हियर सिमिलर ट्रायंगल्स? So let me just color those 2 triangles which can be similar. So this is the one triangle and this is the second triangle. Did you understand it? ये दो ट्रायंगल है, ये कैन बी सिमिलर है. तो चेक करते हैं कैसे सिमिलर हो सकते हैं. एक तो लाइन पैरेलल दिख रही है आपको, ये 2 लाइन्स कैसे पैरेलल है. पैरेलल है मतलब कुछ एंगल्स इक्वल हो गए. पैरेलल का मतलब एंगल इक्वल, समझ में आ रहा है? तो देखते हैं कैसे एंगल इक्वल हो सकते हैं, चेक करते हैं. Isn't it this angle is equal to this angle? क्यों? समझने की कोशिश करो, ये एंगल इक्वल क्यों है? अल्टरनेट एंगल, सिंपल सी बात है. सिमिलरली दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये भी अल्टरनेट एंगल है. तो डू वी हैव दिस 2 ट्रायंगल सिमिलर? ओके, तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू प्रॉपरली राइट द करस्पॉन्डेंस एंड गेट द आंसर. दैट्स इट. चलो चेक करते हैं. इन ट्रायंगल, तो हम लोग ट्रायंगल लेते हैं DOC एंड ट्रायंगल AOB. तो इसमें करस्पॉन्डेंस नहीं है, याद रखो, इस चीज़ में करस्पॉन्डेंस नहीं है, बस एंगल है. ये बस ट्रायंगल के नाम लिखे हुए. तो हम लोग लिखते हैं एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, और इफ़ यू वांट राइट ODC यू कैन राइट दैट, नो प्रॉब्लम. एंगल C इज इक्वल टू एंगल A. दोनों के लिए एक ही रीज़न लिख सकते हो, अल्टरनेट एंगल. आई एम राइटिंग इन शॉर्ट सो दैट आई विल कंप्लीट इट अर्ली. सो नाउ हियर वी हैव ट्रायंगल DOC, एक ट्रायंगल का नाम लिखा, इज सिमिलर टू ट्रायंगल DOC लिख लिया, ठीक है. तो हम लोग लिखेंगे ना D को इक्वल कौन है, D को इक्वल कौन है, ये देखो D को इक्वल B है, तो D की जगह पे B होगा. ओ को इक्वल तो O ही होगा ना, वर्टिकल ऑपोजिट ट्रायंगल, तो O को इक्वल, C को इक्वल कौन है, A है, तो ये रहा मेरा करस्पॉन्डेंस. रीजन क्या होगा, A टेस्ट, राइट. सो इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर हाउ द साइड्स आर इन प्रोपोर्शन. तो चलो लिखो साइड प्रोपोर्शन DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन AO. उतना ही काफ़ी है, बाकी DC एंड BA के बारे में पूछा नहीं है तो मैं नहीं लिखता, नहीं पूछा है तो नहीं लिखूंगा. तो ये क्या हो जाएगा, CSST, राइट. तो DO अपॉन BO इज इक्वल टू OC हो तो गया, दैट्स इट. यही तो प्रूफ पूछा है, डन, प्रूफ इज डन. देखो कितना इजी था इन एज कंपैरिजन विथ योर BPT से कंपैरिजन में कितना इजी था, बहुत ही सिंपल, इजंट इट. चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ते हैं. ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है. चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है, कैसे इसको क्रैक करना है. कम ऑन, अंडरस्टैंड इट. सबसे पहली बात तो जो प्रूव करना है उसको देखते हैं. QR कहाँ है, QR ये कंप्लीट साइड ऑफ द ट्रायंगल QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR पूछा है. ओके एंड अच्छा QR PR दिया हुआ है, इट्स गिवन, PR दिया हुआ है. एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 दिया हुआ है.
प्रूव दैट ये ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है, ट्रायंगल सिमिलर है, बहुत अच्छा है, सिंपल है। देखो, हाउ डू वी यूज़ दिस वन? फर्स्ट ऑफ ऑल, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड और इसका अपोजिट साइड क्या होगा? इक्वल होगा। इट मीन्स पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। सो इन अ गिवन, देयरफॉर क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर, ये क्या है? गिवन है। नाउ इन दिस गिवन, इस पी आर की जगह पे मैं पी क्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी भी समझ में आ जाएगा, देख लो। अभी देखो, जो ट्रायंगल को मुझे सिमिलर करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाकी सब भी भूल जाओ। जो ट्रायंगल को मुझे ये क्या हो गया? जस्ट मिनट, आता है क्या देखते हैं, नहीं तो सब कुछ गया। यस, इट इज़ देयर। ओके, सो इन दिस ट्रायंगल, जो ट्रायंगल मुझे प्रूव करना है उसको मैं बस थोड़ा सा शेड करता हूँ इफ पॉसिबल। पी क्यू एस मतलब ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, एंड टी क्यू आर मतलब कौन सा वाला ट्रायंगल पता है आपको? तो उसके लिए मैं थोड़ा सा, अच्छा ग्रीन कलर लेता हूँ, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है? टी क्यू आर समझ में आ रहा है? दिख रहा है आपको? दिखना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए। तो फॉरगेट अबाउट ये लाइन, इस लाइन को भूल जाओ। इस लाइन को मैं थोड़ा सा अभी वाइट कलर से, एक मिनट, वाइट कलर है क्या? इसको है, इसमें है। ये इस लाइन को थोड़ा सा मैं इरेज करता हूँ, इसको भूल जाओ अभी, राइट नाउ, ठीक है? अभी दिख रहा है आपको? इज दिस सीन देयर? तो कैसे दिख रहा है आपको? ये ट्रायंगल्स में मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल कैसे है, सिमिलर है, राइट? दिस इज गिवन टू मी और दिस इज व्हाट आई गॉट इट। So QR, okay, QR upon QS is equals to QT upon QP. Isn't it this looking like sides similar or sides in proportion, right? So two sides in proportion. Now I want one angle to be equal. तो कौन सा एंगल होना चाहिए वो? Yes, exactly. Angle 1 which is common in both the triangles. So here angle 1 is common, ऐसे लिख सकते हो, or we can write angle SQP is equals to angle RQT. रीजन क्या होगा? कॉमन एंगल, राइट? सो वी हैव ट्रायंगल, विच आर दोज ट्रायंगल्स? कम ऑन टेल मी। अभी साइड्स प्रॉपरली लेने पड़ेंगे। SQP is similar to triangle RQT. That's it. यही तो मुझे प्रूव करना था। और यू कैन डायरेक्टली राइट दिस, ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। डायरेक्टली आल्सो यू कैन राइट दैट, नो प्रॉब्लम। क्लियर? सो अभी आपको समझ में आया मैंने PR को क्यों रिप्लेस किया QP से? ये जो PR को जो रिप्लेस किया QP से, ये क्यों किया? द रीजन वॉज आई वॉन्टेड साइड्स इन प्रोपोर्शन। क्लियर? गेटिंग इट? टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एज इट इज है, याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है कुछ, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ये कर दिया हमने, ये क्या हो गया? अच्छा, मैं पीछे जा रहा था क्या? ओके, चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ठीक है, लेट्स गो अहेड। ये कुछ अजीब सा क्वेश्चन है, डायग्राम भी अजीब है, एंड देन वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल्स सिमिलर। तो मैं इसके लिए बस हिंट देता हूँ। मेरे पास 4 ट्रायंगल है जिसको मुझे प्रूव करना है। मैं आपको बस वो 4 ट्रायंगल कलर्स के हिसाब से दिखाता हूँ, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करूँगा। CEA, ओके ठीक है, ये रहा CEA इज सिमिलर टू CDP, ओके CDP, ये ट्रायंगल से सिमिलर है, छोटे वाले 2। हो गया? कैसे पता है? देख लो, सब AA टेस्ट है, याद रखो, सब AA टेस्ट। 90, इसका ये 90, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो हो गया पहला वाला। दैट्स इट। करस्पॉन्डेंस तो दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं कलर करके दिखाता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली। ADB, ओके ADB, ये रहा वो ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू विच वन? CEA,
CEA, ओके, तो यही है वो ट्रायंगल, यहीं पे है ये वाला, ठीक है। ओके, ये कैसा है, दो ट्रायंगल, चलो देखते हैं। एक तो 90 और ये 90 है, चेक कर लो इन दिस वन, समझ में आ रही है, येलो कलर का ट्रायंगल देख लो, ये 90 है ग्रीन ब्लू कलर के इसमें, और ये 90 है। एंड और एक एंगल होना चाहिए, ये देखो ये कॉमन एंगल है, तो ये सेकंड भी हो गया। सब ए टेस्ट ही है और कुछ नहीं है। चलो कमॉन, BEP, ओके ठीक है, BE कौन सा है, BEP, 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 ओके, ये कंप्लीट ट्रायंगल है। इज सिमिलर टू BDA, BDA, ओके, ये वाला ट्रायंगल, ओके, ऐसे ऐसे है एरो वाला कैटेगरी। चलो देखते हैं। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल हमें पूछा है, और दूसरा वाला कौन सा है, ये वाला। क्लियर, गेटिंग। तो ओके, एंगल बी तो कॉमन लग रहा है आपको, दोनों को दिख रहा है, दोनों दोनों ट्रायंगल में एंगल बी कॉमन है, एंड 90 है, दैट्स इट, वही इजीली हो जाएगा, राइट। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। CDP, ओके, ये वाला, एंड BEP, ये कंप्लीट वाला, ये तो वही चीज़ है फिर से, 90 एंड कॉमन एंगल, कौन सा वाला कॉमन है, ये वाला कॉमन है, और ये 90 है, ये 90 है, ओके, गेटिंग इट। तो ये भी इजीली आप लोग प्रूव कर सकते हो, ये भी क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का ही है, ओके, गेटिंग इट, अंडरस्टैंडिंग। हम लोग टेक्स्ट बुक मर्ज करते हैं इसमें, तो टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस विल बी कवर, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं, ओके, ये भी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, देख लो, दोनों भी है टेक्स्ट बुक, एंड ये भी टेक्स्ट बुक का है। चलो ठीक है, अब यहाँ तक रुक जाते हैं, चलो बस हो गया है ना, बहुत बड़ा वीडियो हो रहा है। तो 10 क्वेश्चन तक कहाँ से, लेट्स सी, थर्ड से मुझे लगता है, सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल लिया हमने, ये तो हमने कल किया था, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 से लेके कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 12, कुछ 9 क्वेश्चन होंगे, ये आपको आज मुझे सेंड करना है, ठीक है, कंप्लीटली सॉलिड, प्रॉपरली सॉलिड विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।